میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. 10 بندے کشتی میں ڈوب گئے ہیں. 10 میں سے 7 بندے بیچارے ڈوب کے تو مر گئے. جی کلام میں الحمدللہ ہم لوگ اپنی رہائش میں بیٹھے ہیں اور ہوم میڈ الحمدللہ ناشتہ ریڈی ہے. تو اپنے پیٹرول پمپ کے اوپر ہی ہم لوگ بیٹھے ہیں ابھی, اور کسی بھی طرح کی یہاں پہ الحمدللہ کچن ہمارے پاس اپنا ہے, ساری فیسلٹیز ہماری اپنی ہیں. تو باقی آگے جا کے انشاءاللہ کلام کی خوبصورتی بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وڑائچ فیلنگ سٹیشن کلام میں نے 2019 میں سٹارٹ کیا, الحمدللہ کامیابی سے فنکشنل ہے. کلام مال روڈ سٹارٹ ہونے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر پہلے وڑائچ فیلنگ سٹیشن واقع ہے. یہ بہت ہی خوبصورت لش گرین وادی ہے. یہاں پہ ہوٹلز کی بھرمار نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ آپ کو بلڈنگز اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر نظر آئے گا. اور اگر بات کروں یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی تو انتہائی محنتی, انتہائی پرخلوص اور کوآپریٹو لوگ ہیں. چلیں ابھی آپ کو آبشار کی طرف لے کے چلتے ہیں جہاں پر لیک ماؤڈن اور سیف اللہ لیک بھی موجود ہے. بہت ہی تنگ پل سے ہماری گاڑی گزرنے لگی ہے کیونکہ یہاں سے گزرتے وقت اکثر گاڑیاں جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. فائنلی الحمدللہ گاڑی تو گزر گئی ہے اور واپسی اسی راستے سے آئیں گے. جب بھی ہم کلام سے ماؤڈن جھیل کی طرف نکلتے ہیں تو ٹائم کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو کافی زیادہ رش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صبح 8 سے لے کے 11 بجے تک جھیل کی طرف جانے والے لوگوں کا اچھا خاصا رش ہوتا ہے, اس لیے ہم 12 بجے کے بعد تقریباً 12:30 1 بجے نکلے. مگر اس کی سزا ہمیں واپسی آتے وقت ملی. جھیل سے واپسی ہماری تقریباً 6 بجے کے بعد ہوئی. اس کی سٹوری ہم آپ کو واپسی پہ دکھاتے ہیں. اوور آل اگر کلام سے آگے والے لوگوں کی آپ سے بات کروں تو لوگ اچھے ہیں, بہت اچھے, بہت برے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اچھے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے تو آپ سے عزت سے پیش آئیں گے. ویسے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ٹورسٹ کسی بھی سیاحتی علاقے میں جائے تو وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھے کیونکہ ان لوگوں نے تو وہاں پہ پرماننٹ رہنا ہے. سارے کا سارا روڈ بہت ہی اچھا کنکریٹ سے بنایا گیا ہے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کلام سے ماؤڈن جھیل کی طرف تقریباً ہمیں 4 گھنٹے لگتے تھے. اگر آپ ڈائریکٹلی ابھی چلیں تو آپ کو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے, آرام سے آپ کلام سے ماؤڈن جھیل پہنچ جاتے ہیں. مگر پھر بھی نئے ڈرائیورز کو اپنی گاڑی آرام سے چلانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم سے ان روڈز کے اوپر موڑ آ جاتے ہیں اور کوئی بھی ہرڈل اور رکاوٹ نہیں ہے. خدا نخواستہ یہ گاڑی ڈائریکٹ سیدھی نیچے بھی جا سکتی ہے. سال کے اندر اکا دکا اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے, مگر خدا نخواستہ ایسے حادثات جو روز یا ان کی بھرمار یہاں پہ نہیں ہے. لے جی, ہم نے ابھی ایک چور پکڑا ہے, آپ کو چور دکھاتے ہیں. ہم لوگ ماؤڈن جھیل کی طرف جا رہے ہیں اور ہم تو یہاں پہ ویڈیو تصویریں کھینچنے کے بنانے کے لیے نیچے اترے ہیں. تو یہ پیچھے سے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا, یہ بندہ 20 کلومیٹر سے ہماری گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہیلو, کیا بیچ رہے ہو؟ ادھر بولو, کدھر جانا ہے؟ ماؤڈن میں. اوکے, ماؤڈن جھیل جانا ہے. Yes. ڈرو نہیں. No. یہ کتنے کا بیچ رہے ہو بتاؤ؟ یہ 50 کا, یہ سب. بتاؤ, پکڑ کے دکھاؤ.
कितने का ये? ये 100 का। 100 का। और ये चले जी देखें जी, अभी ये बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो तकरीबन पिछले 1 घंटे से गाड़ी में बैठा, हमें नहीं पता, और साथ चलें आपको स्वात कलाम की खूबसूरती भी दिखाते हैं। तो आप खुद फैसला करें कि स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत है या स्वात कलाम। अभी आगे हम लोग महोडन झील की तरफ जा रहे हैं, आपको इंशाल्लाह इससे भी खूबसूरत और इससे भी अच्छे नज़ारे हम दिखाते हैं। दरियाए स्वात के किनारे हम खड़े हैं, महोडन झील की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको जब रास्ते में तरह तरह की आपको छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे। अभी ये कोकोनट वाला जिस तरह स्टॉल नज़र आ रहा है, साथ ही आपको दरिया की खूबसूरती भी दिखाते हैं। और जब आप महोडन की तरफ जा रहे हों तो सबसे खूबसूरत ये ब्रिजेस हैं। इन ब्रिजेस कोशिश करें इनको कैप्चर करें, यहाँ पे तस्वीरें वीडियोस बनाएंगे तो आपकी जो मेमोरीज हैं वो बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी। अभी महोडन झील की तरफ चलते हैं हमारे साथ। कलाम से महोडन तक का रोड इतना खूबसूरत बन चुका है कि आप अपनी छोटी या बड़ी किसी भी गाड़ी पे अब आ सकते हैं। आपको अलहदा से कोई जीप रेंट करने की या हायर करने की आपको कोई और गाड़ी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो इसका आपको बताऊं, पहले कलाम से महोडन झील का जो सफ़र था तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था, क्योंकि रोड ख़राब था। अब रोड इतना खूबसूरत बन चुका है कि अब आप यही सफ़र अपनी गाड़ी पे अगर आप रेगुलरली ड्राइव करें एक साथ तो 1 घंटे में आप ये सफ़र तय कर सकते हैं। इस ट्रैक के ऊपर इतनी ज़्यादा खूबसूरत झीलें हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं, ऐसे ऐसे बर्फ़पोश पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स आपको नज़र आएंगे और ट्रीज़ ग्रीनरी नज़र आएगी। और स्वात की तकरीबन 70% टूरिज़म आपको इसी एक ट्रैक महोडन ट्रैक के ऊपर नज़र आएगी। ख़ास बताने वाली बात आपको जो बताई है, अगेन रिपीट करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी पे महोडन झील तक का सफ़र कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाले मज़ीद नज़ारे जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। महोडन झील को हम पीछे छोड़ आए, बिल्कुल साथ ही सैफुल्ला झील है, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से आबशार की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पे कश्ती पे बैठना पड़ेगा। तो वो सामने आबशार नज़र आ रही है। उस टाइम ज्यादा था, वो गिर गया। सिर्फ 500 रुपया दे के हम लोग कश्ती में बैठ गए। ये बंदा हमें लेके जाएगा भी उस पार और वापस भी लेके आएगा, और आपको आगे जाके आबशार का नज़ारा करवाते हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है, कुछ दिन पहले यहाँ पे हादसा भी हुआ है। क्या दिखाने वाला हूँ मैं आपको, मेरे सामने दुनिया की एक और खूबसूरत तरीन आबशार, कलाम से तकरीबन 1 घंटे के फासले पे आपको ये आबशार नज़र आएगी। और मेरे पीछे दुनिया की 2 खूबसूरत तरीन झीलें हैं, एक है झील सैफुल्ला, एक है झील महोडन। फाइनली अभी मैं वाटरफॉल पे पहुंच चुका हूं। ये वाटरफॉल आपको बताऊं कहां पे लोकेटेड है। कलाम से जब आप तकरीबन 35 किलोमीटर आगे महोडन झील की तरफ जाएंगे तो महोडन झील से आधा किलोमीटर आगे झील सैफुल्ला है। सैफुल्ला झील के बिल्कुल ऊपर साथ ही वाटरफॉल मौजूद है। थोड़ा सा आपको इसके करीब जाके मैं नज़ारा करवाता हूँ, मेरे साथ रहे। पिछली दफ़ा मैं जब आया था इस वाटरफॉल के ऊपर तो क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, अनफॉर्चुनेटली इसका विज़िट मैं कर ना सका। हालांकि बिल्कुल इसके 1 किलोमीटर के फासले पर मैं रह गया था।
मगर तकरीबन एक वीक पहले मैं यहाँ पे आया था, मगर अभी मैंने इसलिए फ़ैसला किया कि जो मर्ज़ी हो इंशाल्लाह इस झील का नज़ारा ख़ुद भी करूँगा और अपने देखने वालों को भी इसका नज़ारा करवाऊँगा, क्योंकि इतनी फैसिनेटिंग जो वाटरफॉल शायद आपको कम ही देखने को मिले। मेरे पीछे आपको झील सैफुल्ला नज़र आ रही है, इस साइड पे महुडन झील है कलाम की। में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। 10 बंदे कश्ती में डूब गए हैं, 10 में से 7 बंदे बेचारे डूब के तो मर गए और उनमें से 3 बंदे बचे हैं। हमेशा लाइफ जैकेट्स पहन के इन झील्स के अंदर आप जाएं, कश्तियों में बैठें, क्योंकि देखने में ये झील गहरी नहीं है, मगर ये झील जो है बहुत ही 10 फुट 12 फुट 15 फुट गहरी आपको हो सकती है, मगर देखने में आपको बिल्कुल एक नॉर्मल पानी लगता है। मुझे भी इस कश्ती पर बैठ के काफ़ी डर महसूस हो रहा है। मेरी आप बात माने तो कभी भी अपनी फैमिली बच्चों को इन कश्तियों पे मत बिठाएं, बेशक आपके पास लाइफ जैकेट्स हों तब भी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंसानों की ज़िंदगियों की कोई ज़्यादा कदर नहीं है। कोई भी आपको यहाँ पे हादसा खुदा न खास्ता पेश आ सकता है, और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको, क्योंकि अभी आपको बताऊं कि जब एक बंदे को वापस लेके जाया जा रहा था तो वापसी पे एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से एक बंदे की अगेन दोबारा डेथ हो गई यहाँ पे। ये वाक़या तो 2026 जून का मैं आपको सुना रहा हूँ। 2025 जून का भी आपको इसी तरह का वाक़या सुनाता हूँ। शाही बाग कलाम से ऊपर एक टूरिज़म स्पॉट है, एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं, मगर 6 से 8 लोग वहाँ पे भी मर गए बेचारे, वहाँ पे डूब के। वजह जो मर्ज़ी हो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियोस का ये सिलसिला अभी जारी है, पूरे का पूरा कलाम इंशाल्लाह आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए, हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाड़गोई टॉप और कुमराट लेके जाएंगे।